Hello everyone, good morning. In two classes, we have already studied probability and area and perimeter of plane figures. This chapter is area and plane figure. Area and perimeter of plane figures comes under mensuration unit. And second chapter we have to discuss here is area of circle, sector and segment. Uh, in this chapter, most of the terms which we have already studied in class 9th related to terms related to circles are already have discussed in class 9th, but we not discussing about whole of these, but some another terms which is new for you will be discussed here, such as we have already studied about what is circle, what is circumference, what is radius, what is chord, diameter, secant, arc, and these terms we have already studied in previous classes. But new terms would be come, that is central angle, segment, sector of circle, quadrant, etc., which we discussed in this chapter. We have to discuss this in this chapter gradually. So firstly we discuss about what is circle and thus related terms. Circle is what? The circle is set of points which are at a constant distance from a fixed point. Na? This here fixed point is what? The center point of any round figure is called fixed point, and the distance between this center and any point on the round figure is called fixed distance between this is called distance between the center and that point, or it is also known as radius, the line segment which is joining through center and that point is called radius. Now another topic is diameter. We have already studied but discussed here. What is diameter? The line segment which joins 2 points of circle passing through center is called diameter. Another one is, आपने कॉर्ड पढ़ रखा है, डायमीटर पढ़ रखा है, सेकेंड पढ़ रखा है, ये सब डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे. अनदर टर्म इज segment, sector. We have already studied in this segment of circle. Second one is sector of circle. Now we discussed about particular gradually. You can see that a flow chart is given here about circle. We have divided into 3 parts. The first is a basic part, which is a basic part, and second one is for the segment of circle, and third one is for the sector of circle. We discussed gradually it. First of all we discuss basic part, in which on basic part which we have already discussed in previous classes, but only for recalling it, what is circumference, what is area, what is quadrant, area of quadrant, and what is enclosed by 2 concentric circles, ये सब के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके एरिया निकालने में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि जब 2 ट्रायंगल टच करता है, इंटरनल टच करे या एक्सटर्नल टच करे, तो उसके बीच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आवर moving towards to discussion about basic part. What is basic part? Here circumference. First we know what is circumference. Circumference is the length of boundary of a round figure. Round figure के बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको हम लोग सर्किल सर्कमफ्रेंस कहते हैं. और सर्कमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? द फॉर्मूला इज गिवन फॉर दिस 2 पाई r. In case of, if radius is given, if diameter is given, then it would be pi into d. Okay, diameter is what? Twice of the radius. Diameter क्या है? Twice of the radius है. Thereafter we go through what is area of circle. तो हमने पढ़ा है, जानते हैं
कि व्हाट इज एरिया ऑफ सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या इन केस ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4. और अनदर वी गो सेमी सर्किल, अनदर वर्ड इज अनदर टर्म इज सेमी सर्किल. सेमी सर्किल इज व्हाट, द हाफ ऑफ फुल सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल. एंड सर्किल का जो आधा होता है उसको हम लोग सेमी सर्किल कहते हैं. और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ ऑफ द सर्किल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, या पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, तो आपने सरकमफ्रेंस को हम अदर वर्ड में पेरीमीटर भी बोलते हैं. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री ऑफ राउंड फिगर होता है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्किल. हियर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर का सेमी सर्किल क्या होता है कि हाफ 2 पाई आर है, तो हाफ क्या करेंगे पाई आर, दैट इज द राउंड फिगर का आधा हो गया. एंड द लाइन ज्वाइनिंग पासिंग थ्रू सेंटर दैट इज डायमीटर इज ऑल्सो एडेड, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल वुड बी पाई आर प्लस 2r, या पाई आर प्लस डी भी हो सकता है. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट which we have already studied in previous classes. Now we concentrate on new terms which we have already studied. Concentric circles. What is concentric circle? Concentric circle is that when two or more circle have same center. कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है कि दो सर्किल हो या उससे अधिक सर्किल हो उसका सेम सेंटर होता है, तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं. और टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, रिंग, जो हम लोग जनरली हाथों में पहनते हैं, है ना. तो इस रिंग एक एग्जाम्पल है जो कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एग्जाम्पल हो सकता है. और इसके एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इंक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है कि जो दो सर्किल है उसके बीच का भाग जो होता है उसको हम लोग एरिया इंक्लोज्ड बोलते हैं. और उसको कैसे निकालते हैं कि अगर बिग सर्किल है, बिग सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल होगा और बड़े सर्किल के लिए रेडियस बड़ा होगा, बड़ा कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, और छोटे सर्किल के लिए छोटा आर लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, और इन दोनों के एरिया को डिफरेंस कर देंगे, तो हम उस एरिया को निकाल सकते हैं जो इन दो सर्किल के द्वारा इंक्लोज्ड किए गए हैं. तो एरिया इंक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल वुड बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ओके, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दिस इज डिस्कशन अबाउट व्हाट इज एरिया ऑफ ring, what is area enclosed by two concentric circle. Now we discuss about कि when whatever happened when circles are touching internally and externally. क्या होता है कि जब कोई सर्किल इंटरनली टच करता है या एक्सटर्नली टच करता है तो क्या होता है, तो पहला इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई दो सर्किल इंटरनली टच करता है तो डिस्टेंस जो है उनके सेंटर के बीच की दूरी निकालने के लिए दोनों के रेडियस को घटा लेंगे. सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस. अगर दोनों के रेडियस को घटा लेंगे तो हमें सेंटर के बीच की दूरी पता चल जाएगी. इन केस ऑफ इंटरनली टच करता है तब. अगर इफ दे टचेज एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, तब हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल सकते हैं. ये सम ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इफ सर्किल टचेज एक्सटर्नली. ओके, आवर डिस्कशन अबाउट टचिंग सर्किल आप समझ गए होंगे. और नेक्स्ट वन इज रोटेशनल. इफ व्हील्स, रोटेटिंग व्हील्स, रोटेशनल ऑफ व्हील्स के बारे में हम लोग समझ लें कि क्या होता है. कि आप जानते हैं, आपने पहले ही पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेज में कि रोटेशन, वन रोटेशन इज व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इज कॉल्ड वन रोटेशन. और क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ राउंड फिगर वेयर हियर इज व्हील, then the circumference of wheel is called distance covered by
व्हील इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो क्या हो सकता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील हो सकता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द राउंड फिगर हो सकता है। अब 1 मिनट में जो व्हील है वो कितना दूरी तय करेगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, जो भी डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा डिवाइडेड बाय द सरकमफ्रेंस, कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, नंबर ऑफ रोटेशन हो सकता है। ये चीज़ कब निकाल सकते हैं, जब हम जो 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसको सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था दीज आर बेसिक पार्ट रिलेटेड टू सर्किल। नाउ आवर अनदर टॉपिक इज रिलेटेड टू सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल से रिलेटेड है जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्टली वी नो व्हाट इज सेक्टर ऑफ सर्किल। पहले ये जान लें कि सेक्टर ऑफ सर्किल क्या है। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन enclosed by the two radii and the corresponding arc is called sector of circle। सेक्टर ऑफ सर्किल क्या है कि सर्किल का वह पार्ट जो 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क से बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर, है ना। और सेक्टर 2 प्रकार का हो सकता है। देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर। फर्स्ट मेजर सेक्टर, सेकेंड वन वुड बी माइनर सेक्टर। तो हम लोग इनका एरिया निकालेंगे। उससे पहले हम लोग आर्क पढ़ लेते हैं। आर्क क्या होता है, तो सबसे पहले उसको आर्क पढ़ लें कि आर्क क्या होता है कि तो आर्क ये हो सकता है कि आप पढ़े होंगे। आर्क पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्किल। मतलब कि जब राउंड फिगर पर कोई भी 2 पॉइंट को लिया जाए, तो उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, जब राउंड फिगर पर 2 पॉइंट को लिया जाए और उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर्क कहते हैं। जो कंटिन्यूअस पार्ट होता है उसको हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक मेजर आर्क हो सकता है, एक माइनर आर्क हो सकता है। अब नाउ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन आवर formulas। तो how can we found area, length of arc, area of sector, perimeter of sector। okay, now discuss about what is length of an arc। length of arc कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं। तो आप लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो आर्क क्या है, एक पार्ट ऑफ द होल राउंड फिगर है। तो हम क्या करेंगे कि 2 पाई आर लेंगे, है ना। उसमें जो उस आर्क के द्वारा एंगल बनाया जाएगा, सेंट्रल एंगल जो बनाया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सेंट्रल एंगल पर जितना एंगल बनता है। सेंट्रल एंगल में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है, इसलिए 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर निकालने का, 2 पाई आर इंटू डी डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इट कैन बी डिनोटेड एट एल। नाउ वी required to find out area of sector। area of sector is what, जब area of sector होगा तो उसमें सेंट्रल एंगल में थीटा एक एंगल बनेगा, थीटा एक एंगल। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जब एरिया निकालते हैं तो होल एरिया लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 लिख सकते हैं। ठीक है, या इनके सब ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, हाफ लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस लिख सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चले, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो सकता है, तो पेरीमीटर मतलब इस सेक्टर का, तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि जब सेक्टर लेते हैं तो 2 रेडियस लेते हैं और उसके साथ साथ आप आर्क लेते हैं। तो क्या होगा कि 2 रेडियस का सम 2r हो जाएगा, फिर प्लस लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। तो जब हम दोनों रेडियस का लेंथ जोड़ेंगे और उस आर्क का लेंथ जोड़ेंगे तो पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर हो जाएगा। ओके, दीज आर द माइनर
सेक्टर है ना, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो निकाले। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? तो segment is what? The portion or part of a circular region enclosed between chord and the corresponding arc। chord और arc corresponding arc के बीच के जो पोर्शन होते हैं उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, है ना। सेगमेंट समझ गए? सेगमेंट क्या होता है? एंड नाउ वी फाइंड कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। जो हम सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं, है ना, उसमें से क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड बाय टू रेडियस एंड द कॉर्ड को अगर हम हटा लें, घटा लें, तो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ टू रेडियस एंड द कॉर्ड को घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। एंड अब सेगमेंट दो प्रकार का हो सकता था, होता है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या निकालेंगे कि होल एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ द होल सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। It is discussed about segment of circle. Now we go through the points which we have to discuss briefly. The sum of arc of major and minor arc of a circle is equal to the circumference circle। आप जानते होंगे कि आर्क को दो बार में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो पूरे सर्कमफ्रेंस सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। दूसरा हमारे पास है द सम ऑफ द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द होल एरिया ऑफ सर्किल। आप ये भी जानते हैं कि सेक्टर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है उसको जोड़ देंगे तो पूरे सर्किल के एरिया के बराबर हो सकता है। ठीक है, आप इस फिगर में ये देख सकते हैं। और एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी एंगल किसी भी एंगल द्वारा मिनट हैंड कितना एंगल बनाया जा सकता है, ये जानना जरूरी है। कि हम जानते हैं कि जो भी एंगल एक मिनट हैंड के द्वारा बनाया जाता है ना, एक मिनट में वो होता है आपका 60 मिनट्स में, मतलब एक घंटे में 360 डिग्री बनाया जाता है। कि 360 डिग्री एंगल जो है पूरे एक घंटे में मिनट हैंड के द्वारा 360 डिग्री बनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि एक मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में 60 मिनट से भाग दे देंगे, तो एक मिनट का एंगल 6 डिग्री हो जाएगा। और तो हम कह सकते हैं कि मिनट हैंड द्वारा एक मिनट में, है ना, 6 डिग्री रोटेट किया जाता है। और अब हम नया 12 घंटे में कितना बनता है, तो जो हैंड है, जो आवर हैंड है, उसके द्वारा भी 12 घंटे में 360 डिग्री बनाया जाता है। और ये पूछा जाए कि एक घंटे में कितना डिग्री बनता है आवर हैंड के साथ, तो 30 डिग्री बनता है। और उसी आवर हैंड के द्वारा अगर एक मिनट में कितना डिग्री बनता है, तो हाफ डिग्री बनता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर हैंड रोटेट्स इन 1 मिनट is equal to half degree. Thank you. We have discussed all the topics in related circle. So you have to prepare, solve the examples and related chapter of this area of circle, sector and
segment. Thank you. Best of